So students, today we are taking two important theories. Theory number one is integrated rate equation for zero order reaction. For zero order reaction. तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो क्वेश्चन जनरली ऐसे पूछते हैं, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो नाउ थियरी इज being started. Suppose one reaction is considered. R gives P. R for reactant, P for product. Again, R for reactant, P for product. And this reaction is of zero order reaction. This one is zero order reaction. Now, what is the meaning of zero order reaction? That here we can write rate is directly proportional to the R raised to 0. So in words we can write the rate of reaction is directly proportional to the zeroth power of concentration of reactant. So this statement is the physical interpretation of this mathematical format. चलो proportion की साइन हम रिमूव करते हैं. माइनस dr by dt indicates the rate of reaction. R is the concentration of reactant and power is 0. That means order of reaction is 0. Okay, so this one is the equation and now proportion की साइन हम रिमूव करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस dr by dt इक्वल्स k into r raised to 0. अगेन k into r raised to 0 और पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होगा, किसी का भी पावर 0 दैट मीन्स 1, so it will be k. And now here we are transferring dt which is at denominator, so it will be at numerator and minus sign is transferred. So our formula is dr equals minus k dt. Suppose this one is equation number 1. चलो फिर से समझा देता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान रखो पहले से. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में डिराइव करना है. दिस वन इज द 3 मार्कर थियरी. One reaction is considered, that is R gives P, where R reactant which is converted into product. This reaction is of zero order. So its mathematical format is minus dr by dt is directly proportional to R raised to 0. Minus dr by dt is the rate, so the rate of reaction is directly proportional to the zeroth power of the concentration of reactant. Okay, so this power indicates the order of reaction and proportion की साइन अगर हम रिमूव करते हैं तो हमने k constant लिखा है. Here k is specific rate constant. Specific rate constant. So this one is our k. Now अब ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं वो, अब हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं दोनों साइड. So by taking integration, तो स्टूडेंट्स आपको शायद याद होगा dx का इंटीग्रेशन होगा x plus I, where I is proportionality constant.
ओके, तो अब हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dr इक्वल्स माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt। k इज कांस्टेंट, नेगेटिव साइन और k हमने बाहर ले लिया। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे r, सामने होगा माइनस k और dt का इंटीग्रेशन t, और साथ में हमें i कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना पड़ेगा। सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2 वेयर दिस i is constant of integration। ओके स्टूडेंट्स, चलो एक बार फिर से, r gives p, order of reaction, रेट का फॉर्मूला माइनस dr by dt is directly proportional to r raised to 0। This one is the order of reaction. The rate of reaction is directly proportional to the 0th power of the concentration of reactant. That's why minus dr by dt, proportion की साइन रिमूव करते हैं तो k कांस्टेंट लिखा, r raised to 0 when r is reactant, और ब्रैकेट लिखा है मतलब concentration of reactant, and power is 0। किसी का भी का पावर 0 होता है तो उसको हम 1 लिखते हैं, so k into 1 that is our k। तो फाइनली हम क्या मिला, dr इक्वल्स dt सामने ले गए और माइनस ट्रांसफर किया, सो dr इक्वल्स माइनस k dt वेयर k इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब हम इक्वेशन नंबर 1 का इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस i, वेयर इंटीग्रेशन ऑफ dr इक्वल्स माइनस k इंटीग्रेशन ऑफ dt, सो r इक्वल्स माइनस kt प्लस i, वेयर दिस i इज constant of integration। okay, so this I is constant of integration। अब हम I को, I की जगह पे हमें कुछ लिखना है, चलो क्या लिखेंगे, तो उसके लिए एक देख लो, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, इक्वेशन इफ इक्वेशन नंबर 2 is applied at initial स्टेट, मतलब जब रिएक्शन हमने स्टार्ट नहीं की है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हम लिख सकते हैं t equals 0 and at that time instead of r we have to write r0 where r0 is initial concentration of reactant। okay, so here we will apply instead of r, r0 equals minus k into 0 plus I। okay, so I equals r0 फाइनली हुआ, and put this value in equation number 2, मतलब I की जगह पे हम क्या लिखेंगे, this r0। ओके, तो यहां पे हमें इक्वेशन नंबर 2 मिला, I इक्वल्स r0। अब इस वैल्यू को हम I इक्वल्स r0 इक्वेशन नंबर 2 में हम इनपुट करते हैं, तो फॉर्मूला हमारा होगा R equals minus KT प्लस R0। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा होगा नंबर 3, मतलब I की जगह पे हमने R0 लिख दिया। अब ध्यान से देखना, above equation is compared with y equals mx plus c। ये इक्वेशन हम y equals mx plus c से कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स।
और उस हिसाब से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो y एक्सिस पे हम लेंगे r, x एक्सिस पे लेंगे हम t, ओके। ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन बिकॉज दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये y इक्वल्स mx प्लस c, मतलब y से जो कंपेयर करते हैं वो हम लेंगे y एक्सिस पे, x पे हम जो कंपेयर करते हैं x से वो हम लेंगे x एक्सिस पे। ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसका स्लोप होगा m से जो कंपेयर हुआ है वो, दैट इज माइनस के, और जहां भी वो इंटरसेप्ट होगा वो c से कंपेयर होगा, मतलब एट जीरो कंसंट्रेशन r0, दिस इज अवर इंटरसेप्ट, ओके। तो ये होगा अपना इंटरसेप्ट और स्लोप। तो एमसीक्यू में ये पूछते हैं, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ r वर्सेस t, देन what will be the value of slope and intercept? So slope will be minus k and intercept will be r0. Next, अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, देख लो कैसे, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 3 इज नाउ सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, माइनस, चलो एक बार इक्वेशन लिख देते हैं। अब हम लिखते हैं एट टी टाइम कंसंट्रेशन माइनस के टी प्लस r0, ओके। ये जो माइनस के टी वैल्यू इसको हम इस साइड पे रखते हैं, शिफ्ट करते हैं इक्वल्स की दूसरी साइड पे, आर टी को इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो यहां पे होगा के टी इक्वल्स r0 विच इज पॉजिटिव एंड rt विल बी नेगेटिव। चलो k को सब्जेक्ट बनाओ, सो t इज रिटन एट डिनोमिनेटर, t को सब्जेक्ट बनाओ, k। Thus, these three equations are integrated rate equation for zero order reaction. So now equation is derived. Okay, चलो इक्वेशन डिराइव हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका हाफ लाइफ टाइम। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट्स डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन होगी ऐसे ही, टाइम रिक्वायर्ड टू complete 50% reaction. Okay, this is half life time, means इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम t की जगह पे t हाफ लिखे तो उस टाइम पे फाइनल कंसंट्रेशन विल बी हाफ ऑफ इनिशियल, मतलब 50% यूज हो गया, मतलब हाफ पार्ट यूज हो गया रिएक्टेंट का। तो चलो अब वो इक्वेशन में हम यहां पे पुट डाउन करते हैं। तो टी की जगह पे टी हाफ, ये जो तीसरा वाला इक्वेशन है उसमें, तो टी की जगह पे टी हाफ r0 माइनस r0 बाई 2 डिवाइडेड बाय k, फुल r0 और हाफ r0 सब्सट्रैक्ट करो तो बाकी क्या बचा, r0 बाई 2 और डिवाइडेड बाय k है ही। thus t half is directly proportional to r0। तो अगर स्टूडेंट्स हमने ग्राफ प्लॉट किया, कौन सा,
टी हाफ और आर जीरो का, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। देखो ये स्ट्रेट लाइन होगी और वो पास होगी ओरिजिन में से और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब इफ आर जीरो इंक्रीजेस देन टी हाफ ऑल्सो इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई स्ट्रेट लाइन। ओके, अब क्वेश्चन के जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है सही, आंसर इज यस, बट नॉट फ्रॉम स्टार्टिंग, पहले से वो जीरो ऑर्डर कभी नहीं होगी। तो जीरो ऑर्डर का पहले तो एग्जांपल है इन हेट्रोजीनियस सिस्टम, zero order reaction is possible in heterogeneous system, zero order reaction वो possible होती है। चलो कैसे possible होगी heterogeneous system में, देखते हैं। सपोज उसका एग्जांपल है, सपोज अमोनिया is adsorbed on nickel surface। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक क्लोज कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर में हमने निकल पाउडर रखा है। चलो ये एक निकल का सपोज एक पार्टिकल है, इसको हमने हीट किया वैक्यूम में, फिर वैक्यूम में इसको स्टोर किया, यहां पे पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है और यहां पे हमने एक कंटेनर में एक पाइप ऐड की है जिससे हम अमोनिया अंदर पास कर सके। अब सुनिए स्टार्टिंग में क्या होगा, अभी तक हमने अमोनिया गैस सपोज पास नहीं किया है, तो ये इसकी जो सरफेस होगी वो क्लियर कट होगी, क्लीन होगी। But whenever we are passing ammonia gas, then ammonia gas will be absorbed on the surface of nickel। तो ये अमोनिया का पूरा कोटिंग हो गया, मतलब रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? अगर हमने ज्यादा अमोनिया गैस पास किया तो और एक लेयर बनेगा, और ज्यादा अमोनिया पास किया तो और लेयर बना, और अमोनिया हमने ज्यादा पास किया, जब तक मैक्सिमम लेयर नहीं बन जाते तब तक वो फर्स्ट ऑर्डर होगी। लेकिन एक आफ्टर सेचुरेशन पीरियड, सेचुरेशन पता है ना, जैसे अब पानी में हम ग्लूकोज या कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करते जाए, एक लेवल ऐसा आएगा कि मैक्सिमम हमने डिसॉल्व कर दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर वो आगे डिसॉल्व नहीं होगा, देन वी कैन से दैट हियर इट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सिमिलरली यहां पे निकल की सरफेस अब अमोनिया से सैचुरेट हो गई। अब अगर ज्यादा अमोनिया गैस पास करे फिर भी रेट इसका क्या होगा, अमोनिया रेस टू 0, देन आफ्टर वी कैन से दैट नाउ दिस रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। चलो तो ये हेटेरोजेनियस सिस्टम में ऐसा होगा, whenever any gas is passed off the surface of any metal, at that time adsorption is occurred at starting, reaction will be of first order, but whenever maximum layers are generated on the surface of that metal, then after we can say that, so if we apply Z and then concentration of ammonia, so at starting with increase in concentration of ammonia, rate increases, but at saturation, after saturation level, it will be constant. So this will be the graph. Integrated rate equation for first order reaction. तो जीरो ऑर्डर का अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। First we will take a hypothetical reaction, R gives P, this is of first order, so this is our first order reaction। Then rate, that is minus dr by dt, this will be k into r raised to 1
This power 1 indicates first order. Okay, and the physical interpretation of this statement of this equation is the rate of reaction is directly proportional to 1 power of concentration of reactant. Okay, so now here we can write minus dr by dt equals k into r. वहां पे यही जीरो आता था, मतलब हम 1 लिख देते थे तो k अकेला लिखते थे. अगेन dt ट्रांसफर किया, माइनस ट्रांसफर किया और r हम नीचे लिखते हैं. तो हियर वी कैन राइट dr by r इक्वल्स माइनस k dt. चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं. नाउ टेक इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1. तो स्टूडेंट्स याद हो तो dx by x that is 1 by x dx और इसका इंटीग्रेशन होगा ln x और ln को अगर हम ऐसे लिखे तो log x, लेकिन उसका पावर e होगा तो उसको हम ln बोलते हैं. ओके, सो दिस इज अवर log x बेस e. तो चलो अब इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं. सो नाउ इफ वी टेक इंटीग्रेशन ऑफ इट तो dr by r equals minus k is a constant dt इतना आएगा. ओके, अब dr by r का इंटीग्रेशन अभी हमने बताया, नेचुरल लॉग ln r इक्वल्स माइनस k. dt का इंटीग्रेशन t और साथ में हम लिखेंगे i. Where this I is, this one is equation number 2, I is constant of integration, constant of integration. अब आगे if above equation is applied, अगर ये इक्वेशन हमने अप्लाई किया एट स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन, एट इनिशियल स्टेज, ये लिखेंगे. चलो एट इनिशियल स्टेट, then this t will be 0 and r will be r0. Put the both of the things in equation number 2. So ln r0 equals minus k into 0 plus I. This will be cancelled, so I will be ln r0. Okay, so put the value of I in equation number 2. चलो इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 कौन सा था अपना, ln r minus kt plus I. तो यहां पे हम लिखेंगे ln r t at t time concentration minus kt plus I की जगह पे हम लिखेंगे ln r0. This is our equation number 3.
Next, now compare the above equation with इक्वेशन ऑफ लाइन, और वो कौन सा है, y इक्वल्स mx प्लस सी। तो फिर से ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। y एक्सिस पे हम लेंगे lnr, x एक्सिस पे लेंगे एट t टाइम। तो ग्राफ विल बी अगेन स्ट्रेट लाइन, y एक्सिस पे lnr, x एक्सिस पे t, सो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। चलो, और ये जो स्ट्रेट लाइन हमें यहां पे मिलेगी, उसका स्लोप होगा, जिसको हमने m से कंपेयर किया है, वो दिस विल बी माइनस के, एंड इंटरसेप्ट विल बी जो c से हम कंपेयर करते हैं वो lnr0 at 0 time concentration of reactant। Now इक्वेशन नंबर 3 को अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। ln है ना, उसको हम नेचुरल लॉग लिखे तो क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, चलो वो यहां पे लिख रहा हूं मैं। ln x इक्वल्स 2.303 log x। ओके, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2.303 log RT इक्वल्स माइनस KT प्लस 2.303 log R0। नाउ बोथ ऑफ द साइड्स हम 2.303 से डिवाइड करेंगे। सो divided by 2.303 to both of the sides। So that यहां पे 2.303 कट, और यहां पे 2.303 कट, और यहां पे 2.303 एक्स्ट्रा डिवीजन में आ जाएगा। So that log of RT equals minus K 2.303 multiplied by T plus log of R0। तो ये हुआ अपना इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब अगेन यही इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन से हम कंपेयर करेंगे। तो y इक्वल्स अगेन mx प्लस सी। तो y एक्सिस पे होगा log RT, x एक्सिस पे वही टाइम। ग्राफ कैसा होगा देखते हैं, चलो। तो y एक्सिस पे log ऑफ r, x एक्सिस पे t, ग्राफ विल बी अगेन स्ट्रेट लाइन। Slope will be which is compared with m, and it is minus k by 2.303। चल, तो slope will be minus k upon 2.303 and this intercept will be log R0। ओके, तो अब हमें यहां पे याद रखना है क्या, कि log of RT equals minus k by 2.303 into t plus log of R0। तो ये जो y equals mx plus c फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम जनरली जब कंपेयर करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होगा उसका ग्राफ, और y से जो कंपेयर हुआ वो y एक्सिस पे, x से जो कंपेयर हुआ वो x एक्सिस पे। ग्राफ विल बी अगेन स्ट्रेट लाइन। स्लोप होगा जो m से कंपेयर हुआ वो, और c से जो कंपेयर होगा वो होगा अपना log of R0। तो एज ए एमसीक्यू हमें ये याद रखना है कि चलो इसका ऐसा ग्राफ होगा।
चलो अब इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 फिर से हम लिखते हैं, क्या था, log of RT इक्वल्स माइनस KT बाय 2.303 प्लस log of R0। ओके, ये इक्वेशन था, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो माइनस KT बाई 2.303 है उसको इस साइड भेजो, इसको इस साइड भेजो। सो KT अपॉन 2.303 इक्वल्स log ऑफ R0 माइनस log ऑफ RT, so that KT upon 2.303 equals log of R0 upon RT। चलो K को सब्जेक्ट बनाओ, तो K इक्वल्स 2.303 by T log of R0 upon RT। T को सब्जेक्ट बनाओ, 2.303 by K log of again R0 upon RT। Thus these equations are the integrated Z equation for first order reaction। और याद रखना है हमें, all the radioactive reaction follow first order mechanism। okay, so this is radioactive reactions and it will follow the first order mechanism। वैसे बहुत सारी है इसके अलावा भी, लेकिन जो जितनी भी रेडियोएक्टिव रिएक्शंस है ना वो सब फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी। चलो अब एक दो चीजें एक्सप्लेन करनी थी, तो ध्यान रखो वो। चलो जो लास्ट है ना, सपोज हम उसको इक्वेशन नंबर देंगे 5। अब हम यहां पे इक्वेशन नंबर 5 को एक फॉर्मेट में हम उसको लिख रहे हैं, तो उसके लिए स्टेट पहले आएगा, टाइम, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसके हिसाब से इक्वेशन नंबर 5। तो एट इनिशियल स्टेट at T1 time concentration of reactant is R1, at final state time is T2 and concentration of reactant is R2। तो इक्वेशन नंबर 5 कैसे लिखेंगे हम, T1 equals 2.303 by K log of R0 upon RT। T2 equals 2.303 K log of R0 upon RT। अब यहां पे T1 है तो यहां पे हम 1 लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे हम 2। अब इन दोनों को हम नंबर दे देते हैं। सपोज ये है अपना इक्वेशन नंबर 6 और ये है इक्वेशन नंबर 7। तो अब हम यहां पे लेते हैं इक्वेशन 7 माइनस इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, तो क्या होगा, T2 माइनस T1, तो सामने 2.303 बाय K। चलो दोनों में कॉमन डायरेक्टली लिख देते हैं हम, यहां पे होगा log ऑफ R0 माइनस log ऑफ R2, फिर ये पूरी टर्म माइनस उसमें से ये कॉमन, तो बाकी बचा माइनस log ऑफ R0 प्लस
log ऑफ R1 होगा। ओके, log R0 कट हुआ। चलो k को सब्जेक्ट बनाओ, 2.303 बाय T2 माइनस T1, फॉर्मूला होगा log ऑफ पॉजिटिव टर्म पहले, R1 इज पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय log ऑफ R2। अब ये तो log का रूल पता होगा, log ऑफ R1 माइनस log ऑफ R2 मींस लॉगरिथम ऑफ R1 अपॉन R2। तो ये इक्वेशन यहां पे डिराइव हुआ। ओके, इट इज इक्वेशन नंबर 8। तो वो T2 और T1 तो R1 R2, बस इतना याद में रखना था। नेक्स्ट, state at initial state time is T1, concentration of reactant is R1. So equation can be written like this: T1 equals 2.303 by K logarithm of R0 upon R1. Simple mathematical steps है। Similarly for final, T2 concentration R2 और पूरा इक्वेशन। फिर इक्वेशन 7 में से इक्वेशन 6 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे T2 माइनस T1 2.303 बाई के दोनों में कॉमन, इसको हम लिखेंगे log R0 अपॉन R2। तो अपॉन R2 है तो फिर माइनस हम लिख सकेंगे। सिमिलरली ये माइनस लिख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म माइनस होगी तो दूसरी टर्म पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म इज माइनस, दूसरी पॉजिटिव। log R0 कट, T2 माइनस T1, चलो इसको नीचे ले गए, K1 को साइड में ले लिया, तो K इक्वल्स 2.303 बाय T2 माइनस T1 और फिर लॉगरिथम ऑफ R1 अपॉन R2, क्योंकि लॉगरिथम ऑफ R1 माइनस लॉगरिथम ऑफ R2 था, तो यहां पे हम लिख पाएंगे लॉगरिथम ऑफ R1 अपॉन R2। नाउ वी आर टेकिंग हाफ लाइफ टाइम। और हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? T equals T half. So at that time, final concentration, T time concentration is half of initial. T equals T half. Half life time means the time required for the completion of 50% reaction. 50% reaction मतलब R0 का हाफ करेंगे, वो होगा अपना RT। तो अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज T equals 2.303 by K logarithm of R0 upon RT. Okay, this equation is the integrated rate equation for first order reaction. चलो T की जगह पे T half 2.303 by K logarithm of R0 as it is, और RT की जगह पे होगा R0 by 2, तो 2.303 by K logarithm of R0 कट logarithm of 2, तो T half इक्वल्स क्या होगा? चलो ये 2.303 log मतलब याद हो तो ln2 by K, इट्स अनदर फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन, और अपना रेगुलर इक्वेशन हम लेते हैं तो 2.303 एज इट इज, और log 2 की वैल्यू है 0.3010 और डिवाइडेड बाय K, दैट्स व्हाई T half इक्वल्स क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 0.693 by K। Okay, so this is our T half formula, and T half doesn't depend upon the initial concentration of reactant, क्योंकि यहां पे R0 टर्म है ही नहीं, क्योंकि यहां पे कट हो गई ना, वहां पे रहती थी, याद हो तो R0 by 2K होता था जीरो ऑर्डर के लिए। तो यहां पे ग्राफ कैसे होगा? R0 कंसंट्रेशन कोई भी हम लेते हैं तो T half इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऐसा ग्राफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दो थियोरी हमारी कंप्लीट हुई। टिल नेक्स्ट 5 days you have to write 3 times per day, टोटल 15 टाइम्स होगी दोनों थियोरीज।
ओके, तो ये आपको दोनों लर्न करनी है। और एग्जाम में इन दोनों में से जनरल एक होती ही है 110%, या तो ग्राफ पे क्वेश्चन, मतलब ये जो मतलब आज के लेक्चर का जो भी हुआ उसमें से या तो एमसीक्यू या तो फिर पूरी थ्योरी या तो फिर इसका न्यूमेरिकल 110% होगा ही। मतलब मिनिमम मैंने 1 मार्क का आज कंप्लीट किया। ओके